Good morning, all of you. Welcome to KGP Online Classes and welcome back to Environmental Studies class. In our previous videos, we were learning about safety and we learned about safety rules that we should be following while we are on road, while we are swimming, okay, and even when we are at home we should be careful and we should know about things. We should keep them in our mind and we should be careful so that we can protect ourselves from the danger. Now in this video we are going to learn about more places, more things about safety and more rules that we should keep in our mind, that we should be careful about. Now we are going to learn about safety while playing. Now you many of you might think कि while playing, safety while playing, से playing करते वक्त तो when we are playing we are most happy, हम लोग बहुत खुश होते हैं जब हम लोग खेल गए होते हैं. तो इस वक्त भी क्या हमें सेफ्टी की जरूरत होती है? So the answer is yes. Now let's learn about safety while playing. Always play safe games. So usually what kids do is whenever they are playing they are really happy, and in fact अगर आप चाहते भी नहीं हैं तो गलती से sometimes you harm the other kid, आप दूसरे बच्चे को चोट पहुंचा सकते हैं. ऐसा हमें नहीं करना है, इसीलिए हमें हमेशा सेफ गेम्स खेलने चाहिए. नाउ द थिंग इज व्हाट आर सेफ गेम्स. ओके, जैसे आप पूछ सकते हैं कि सेफ गेम्स क्या होते हैं. अभी आप बहुत छोटे हैं, ओनली इन क्लास 2. आप लोगों को कोई भी ऐसा गेम नहीं खेलना चाहिए जिससे दूसरे बच्चों की चोट लग जाए, लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल. दीज आर रियली गुड गेम्स और बच्चे इन्हें सीखते भी हैं, बट जब हम थोड़े से और बड़े हो जाए तभी हमें खेलने चाहिए. या तो अगर हम खेल रहे हैं तो हमें अपनी पेरेंट के सुपरविजन में इन्हें खेलना चाहिए, पेरेंट्स के अंडर, अडल्ट्स या फिर अडल्ट्स के अंदर, ठीक है, बड़ी दीदी भैयाओं के साथ, अकेले नहीं, क्योंकि कई बार हम वो बॉल इतनी हैवी होती है कि हम उसे मारते हैं तो दूसरे बच्चों के चोट लग जाती है. सो बी केयरफुल. Now second is always play in the parks and playgrounds away from traffic. Now again this is something that we have studied when we were reading safety while on road. तो जब भी आप को कहीं खेलना है तो हमें किसी भी ऐसे एरिया में नहीं खेलना चाहिए, स्पेशली ऑन रोड जहाँ पे व्हीकल्स आते जाते रहते हैं. इसीलिए उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा प्लेग्राउंड्स में खेलना चाहिए. नंबर 3, नेवर रन ऑन द रोड while playing. Yes. Sometimes that this happens, like you are playing and you have to go somewhere. So while playing, like for example if you're playing something, ball से आप कुछ खेल रहे हैं, ball बाहर चल गई, so you just go and you run to catch the ball, and in that running, while you're running, you might miss out that a vehicle is coming from the other side and it can hit you. So don't do that, ठीक है? Do not run on the road. That is really important, and this is something that I have already talked about. I have seen so many kids while they are playing while they are celebrating Makar Sankranti, they run after kites, they try to catch kites, and while they are trying to do that they run on the roads. ठीक है, वो roads पे दौड़ते हैं kites को catch करने के लिए, which is wrong. You should never do that. Okay. Now the fourth one, do not push or hurt each other while playing. This is really important. While we are playing we should be kind and we should be respectful. जब भी हम खेल रहे हैं, चाहे हम स्कूल में हो चाहे हम घर में हो, हमें दूसरों से प्यार से खेलना है and हमें उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी है. You should never hurt someone or push someone. As you are kids, तो हम लोगों की हमेशा कभी ना कभी छोटी मोटी हो जाती है लड़ाई दूसरों से, कि मम्मा उसने ये कहा, मम्मा उसने वो कहा, मैम उसने ये कहा. ये सारी चीजें होती हैं एंड विच इज कम्प्लीटली ओके, मगर हमें गेम खेलते वक्त किसी को भी ना पुश करना चाहिए, ना किसी को हमें चोट कभी नहीं लगानी चाहिए. इट इज रियली इंपॉर्टेंट. नाउ फिफ्थ इज बी केयरफुल while climbing on swings.
Now this is really important. What is the meaning of swings? Swings क्या होते हैं? Swings are in Hindi you can say जो झूले होते हैं हम उन्हें swings कहते हैं, ठीक है. सो जब भी हम चढ़ रहे हैं, एक तो हमें कई सारे बच्चों को एक साथ कभी भी स्विंग्स पे नहीं चढ़ना चाहिए, दैट इज रियली रॉन्ग. एंड जब आप झूलों पे हैं तो ऐसा नहीं कि आप बहुत जल्दी जल्दी स्विंग्स पे प्ले करें, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. एंड हमें केयरफुल रहना चाहिए जब हम स्विंग्स पे चढ़ रहे हैं. So these are few important points, and I'm sure there might be many more that your mothers, your fathers tell you while you are going to play, and you should always keep them in mind. Okay, now we will learn about my body safety rules. Now dear kids, as we have already studied about ट्रैफिक रूल्स एंड वाई वी शुड लर्न अबाउट देम, ठीक है. हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, उन्हें फॉलो करना क्यों जरूरी है उन्हें फॉलो करना, जिससे हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें जब हम रोड पे हैं. उसी तरह इन द सेम वे वी शुड ऑल्सो नो अबाउट अवर बॉडी सेफ्टी रूल्स, कि हमें इन रूल्स को जानना इसीलिए इम्पोर्टेंट है जिससे हम अपनी बॉडी को सेफ रख सकें किसी भी टाइप के डेंजर से, ठीक है. सो लेट्स लर्न अबाउट दैट. ओके, body safety for kids. Now body safety for kids is really important, and if any parent is watching this video, I request you to watch this video carefully and don't shy away and don't hesitate to talk to your kids about this, because this is really important. Every child should know about this and every parent should know about this. Okay, so first is to understand about the touch, ठीक है. हमें पता होना चाहिए, we should learn about that about good touch and bad touch, so that we can be safe and we can protect our body. So there are two types of touch, good touch and bad touch. So let's learn about this. जब भी आप सुबह सो के उठते हैं, ठीक है, और आपकी मम्मा आपको प्यार करती हैं, she does do like this and she sometimes gives you a kiss. आपके पापा आपको प्यार करते हैं, वो आपको गले लगाते हैं, and sometimes your teachers pat you on your shoulder, और आपके कई बार दोस्त भी आपके शोल्डर्स पे हाथ रखते हैं. सो इस टाइप का जो टच होता है जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, हमें अनकंफर्टेबल नहीं लगता या फिर हमें गंदा नहीं लगता, सो उस टच को हम कहते हैं गुड टच. बट बैड टच, नाउ बैड टच को हम बैड क्यों कहते हैं, हम इसे बैड क्यों कहते हैं, बिकॉज बैड टच इज विच मेक्स यू अनकंफर्टेबल, जो हमें गंदा लगता है, ठीक है. बैड टच ऐसा टच होता है जिससे हमें खुशी नहीं मिलती, जो हमें गंदा लगता है. सो हम उसके बारे में ही सीखेंगे. एंड इफ एनीवन टचेस यू एनीवेयर दैट इज प्राइवेट पार्ट ऑफ योर बॉडी, उसे हम बैड टच कहते हैं और वो हमें गंदा लगता है. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. वी विल लर्न more about the places that are only belongs to us and no one else should touch them, ठीक है. Now look at here at the girl's figure and at the boy's body. These are called as our lips, chest, and the area that is between the legs, and the area that is behind, that is buttocks. So no one should touch them. Our body belongs to only us, ठीक है. अगर ये मेरी बॉडी है तो ये सिर्फ मुझे बिलोंग करती है. ऑल्दो आप अभी बहुत छोटे हैं, सो ऐसा हो सकता है कि कई बार आपके पेरेंट्स आपको बाथ देते हैं, बट दैट डजंट मेक यू अनकंफर्टेबल, उससे आपको गंदा नहीं लगता, सो विच इज ओके. बट आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई और भी है जो आपके घर में आया अदर देन योर पेरेंट एंड मदर, अगर कोई भी ऐसा इंसान आया और वो कोई भी इंसान आपको
आपको टच करता है on which parts of your body, on your lips, on your chest, and on the area that is between your legs or at the behind, which we called as buttocks. अगर उन्हें कोई भी छूता है तो वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए, मैं क्यों बता रही हूँ, जिससे आपको पता होना चाहिए कि ये सारे जो एरियाज हैं ये सिर्फ हमारी बॉडी है और इसे हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। सो ये ऐसे एरियाज हैं बेटा जिन्हें सिर्फ आप खुद टच कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ समवन टचेस देम, ठीक है। सो यही वापस से यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि लिप्स, चेस्ट एंड एरिया दैट इज बिटवीन द लेग्स एंड बटक्स, ऐसे एरिया को सिर्फ आप टच करेंगे और कोई नहीं। और कोई अगर इन्हें टच करता है तो उससे आपको अनकंफर्टेबल लगता है, बट अगर ऐसा किसी ने किया तब हमें क्या करना है। अगर ऐसा कोई करता है सो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज यू शुड शाउट नो लाउडली। आपको जोर से चिल्ला के बोलना है, नो आई डोंट लाइक दिस, नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगा, स्टॉप, तुरंत बोलिए स्टॉप, मत करिए, डोंट। और अभी आप बहुत छोटे हैं सो हमें क्या करना है, हमें तुरंत भाग जाना है वहां से, ठीक है। जल्दी से जैसा ही आपको मौका दिखे, आपको जैसे ही हल्का सा भी अनकंफर्टेबल लगे, आपको वहां से तुरंत भाग जाना है। और फिर आपको क्या करना है, आपको भाग के अपने मम्मी पापा के पास, और अगर स्कूल में हैं आप तो अपने टीचर्स के पास जाना चाहिए, ठीक है। और अपने टीचर्स और अपने मम्मी पापा को आपको सारी बातें बिल्कुल अच्छे से खुल के बतानी है। अगर चाहे आपसे कोई भी कहे कि नो डोंट, ये किसी से हमारा सीक्रेट है, किसी से शेयर मत करना, तो आपको ये नहीं, ऐसा आपको छुपा के नहीं रखना है, ये आपको तुरंत अपने मम्मी पापा को बताना है। और अगर आप स्कूल में हैं तो तुरंत अपने टीचर को ये बात आपको बतानी है। और बड़े लोगों के पास जाना इंपॉर्टेंट क्यों होता है बेटा, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन से सही स्टेप्स हमें लेने हैं। अगर आप अपने दोस्तों को बताएंगे और या फिर आप किसी दीदी भैया को बताएंगे तो उन लोगों को मे भी पता ना हो कि हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए आपको हमेशा अपने मम्मी पापा और अपने टीचर्स को बातें बतानी चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट and I always talk about this whenever we are in class. So this year I didn't get the opportunity, but in this chapter I got the opportunity. So in this video we learned about the safety we should follow, safety rules we should follow while we are playing, and few points that we should keep in our mind about our body, and things we should know about that we should be following to save our body, to keep our body safe and protect our body from the danger, ठीक है। दिस वॉज रियली इम्पॉर्टेंट एंड जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि वो भी अपने बच्चों के साथ इन सारी बातों को घर पे करें। नाउ दिस video, this topic was last in this chapter. Watch all the 3 videos really carefully, and if you have any problem, do contact me. Thank you.